ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت ہی پرانے وقت کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہر قسم کے علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادہ بہت عجیب طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا پڑھنے میں دل نہیں رکھتا تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا اور رات کو پڑھ کر سو جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادہ گھومتا ہوا اپنے ملک سے بہت دور چلا گیا اور راستہ بھول جانے کے باعث وہ اپنے ہمسایہ ملک میں چلا گیا۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا، اسی لیے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور اب سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں، رات ہونے والی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کھانا بھی کھانا ہے، لیکن میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک جنگل میں پڑے ہوئے ہاتھی دانت پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے ہاتھی دانت کو تراشنا شروع کر دیا۔ اسے یہ کام بہت اچھے سے آتا تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ہاتھی دانت کو چھیل کر اسے چاولوں کی شکل دے دی۔ ان چاولوں کو لے کر وہ قریبی گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا بڑھئی رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اسے کھانا پکا کر دیتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ رات کے وقت شہزادہ اس بڑھئی کے گھر میں گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میرے پاس یہ تھوڑے سے چاول ہیں، آپ انہیں پکوا کر مجھے دے دیں تاکہ میں یہ کھا کر رات گزار سکوں۔ اس بڑھئی نے شہزادے کے لیے بستر بچھایا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اس کے لیے چاول پکا دے۔ اس کی بیٹی چاول کو ابالنے لگ گئی، لیکن آدھی رات گزر جانے کے باوجود بھی وہ چاول پک نہ سکے۔ بیچاری بار بار چاولوں کو دیکھتی رہی، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی نہ پکا۔ وہ سوچ کر بہت پریشان ہوئی کہ اب تو اس کو مہمان کو بھوکا رکھنا پڑے گا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر گھر سے چاول نکالے اور انہیں پکانے کے لیے رکھ دیا۔ وہ جلد ہی پک کر تیار ہو گئے اور انہیں ایک پلیٹ میں نکال کر وہ اجنبی مہمان کو کھانا دے آئی۔ شہزادے نے وہ کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ پھر وہ شہزادے کے لائے ہوئے چاولوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے چاول ہیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا کہ اس کا مہمان تو بہت ہی ہوشیار کاریگر ہے، تو اس نے شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شہزادے سے جب یہ بات کی تو شہزادہ بھی راضی ہو گیا۔ اب شہزادہ وہاں پر بڑھئی بن کر رہنے لگا۔ اسے کچھ اور کام تو نہیں آتا تھا۔ اسے دن رات خاموش گھر میں لیٹے دیکھ کر ایک دن بڑھئی کی بیٹی اس سے کہنے لگی کہ ایسے تو زندگی بسر نہیں ہو سکتی، تم جاؤ اور کہیں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ تاکہ کچھ بنائے اور اس کو بیچ کر گھر چلا سکے۔ اس طرح بیکار بیٹھے رہنا آدمیوں کو زیب نہیں دیتا۔ شہزادے نے بیوی کے کہنے پر اوزار اٹھائے اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے کئی درختوں کو ایک ایک کر کے کاٹنے کے لیے منتخب کیا، لیکن پھر نہ جانے سوچ کر ان میں سے ایک درخت بھی نہ کاٹا۔ آخر میں جب وہ جنگل سے واپس آنے لگا تو ایک درخت نے اس سے کہا کہ شہزادے، تم مجھے کاٹ کر اپنے ساتھ لے چلو، میری لکڑی سے تم پلنگ کے 4 پائے تیار کر لینا اور انہیں بیچ دینا، تم ساری عمر کے کام کرنے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب اس پلنگ کے پایوں کی قیمت پوچھی جائے گی تو تم اتنا کہنا کہ ان کی قیمت ان پایوں سے پوچھیے۔ شہزادہ اسی درخت کو کاٹ کر گھر لے آیا۔ اس کے ٹکڑے کر کے اس نے خوبصورت پلنگ کے 4 پائے تیار کیے۔ ایک دن شہر کے بازار میں انہیں فروخت کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ بازار اس ملک کے بادشاہ نے قائم کیا تھا اور اس نے اپنے نوکروں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی شخص اس بازار سے مایوس ہو کر نہ جائے۔ جس چیز کو کوئی خریدنا نہ چاہتا ہو تو اس چیز کے پیسے شاہی خزانے سے دیے جائیں۔
शहजादा अब उसी बाजार में शाम तक अपने तैयार किए हुए पायों को लेकर बैठा रहा, लेकिन कोई भी खरीदार उसे लेने पर तैयार न हुआ। कोई भी उससे कीमत पूछता तो वो पाए कहते 4 लाख अशरफियां रखो और हमें ले जाओ। नतीजा ये हुआ कि कोई भी शख्स इतने कीमती पलंग के पाए लेने को तैयार ना हुआ। आखिर में शाम को नौकर शहजादे के पास आए और पूछने लगे कि इन 4 पायों के कितने रुपए लोगे। शहजादे ने कहा, तुम खुद इन पायों से ही इनकी कीमत दरियाफ्त कर लो। नौकरों ने जब उनसे कीमत पूछी तो उन्होंने अपनी कीमत 4 लाख अशरफियां बता दी। नौकरों ने जिंदगी में पहली बार पलंग के पायों को बोलते हुए देखा था। वो अपने बादशाह के पास गए और कहने लगे कि एक बढ़ई ने 4 पलंग के पाए बनाए हैं जिसे शाम तक किसी ने नहीं खरीदा। बादशाह ने कहा कि फिर इन्हें तुम खरीद कर ले आओ और उनकी कीमत शाही खजाने से अदा कर दो। वो कहने लगे कि उनके दाम बहुत ज्यादा हैं। वो खुद अपने मुंह से 4 लाख अशरफियां तलब करते हैं। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने बुला के बढ़ई को बुलाकर हमारे सामने पेश कर दो। नौकरों के साथ शहजादा 4 पाए लेकर बादशाह के सामने आ गया। तो बादशाह ने पूछा कि क्यों बढ़ई, इन पायों के कितने पैसे लोगे? शहजादे ने कहा कि आप खुद इनसे इनकी कीमत मालूम कर लीजिए। बादशाह ने जब पायों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 4 लाख अशरफियां यहाँ रखिए और हमें अपने पास रख लें। बादशाह ने फौरन 4 लाख अशरफियां देकर पाए रख लिए। शहजादे के जाने के बाद उसने इन 4 पायों का एक खूबसूरत पलंग बनवाया और शाम का खाना खाकर जल्दी ही लेट गया। बादशाह को नींद नहीं आई, लेकिन वो पलंग पर लेटा रहा। आधी रात गुजर चुकी थी। सब महल के अंदर और बाहर सो चुके थे। अचानक पलंग का एक पाया दूसरे से बोला, अब तुम मेरा बोझ उठाओ, मैं बाहर सैर करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर पाया अपनी जगह से निकला और महल की खिड़की से निकलकर आसमान में चक्कर लगाता हुआ एक जंगल में चला गया। जंगल में उसने सोने का एक दरख्त देखा और वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके वापस आने पर बाकी 3 पायों ने उससे पूछा कि भाई कहाँ की सैर करके आए हो? आज तुमने क्या चीज देखी है? तो वो कहने लगा, मैं तो घूमता फिरता एक जंगल में चला गया। वहां एक सोने का दरख्त देखकर मैं वापस आ गया हूँ। अगर इस सोने के दरख्त को बादशाह उखाड़ कर ले आए और अपने महल में लगा ले तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन पहला पाया बोला, हाँ, बादशाह उसे उखाड़कर अपने महल में से तो ला सकता है, लेकिन उसे सोने के दरख्त में एक देव रहता है। वो किसी को उस दरख्त को काटने नहीं देगा। अगर किसी ने उखाड़ने की कोशिश की तो देव उसे मार डालता है। बादशाह ये सारी बातें सुन रहा था। अब दूसरे पाए की बारी थी। वो बोला, अब तुम लोग मेरा बोझ संभालो और मैं जा रहा हूँ। वो भी उसी तरह उड़कर आसमान पर चला गया और वापस आया तो दूसरे पाए उससे पूछने लगे कि आज तुमने क्या देखा? उसने बताया कि बादशाह के महल में 7 चोर अशरफियां चुरा कर भाग रहे थे। जब उन्हें भागते हुए देखा तो उनके सर फोड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उन्हें बेहोश करके अपनी जगह पर आ गया है। बादशाह पलंग पर लेटे लेटे उस पाए की भी सारी दास्तान सुनता रहा। उसके बाद तीसरा बोला, अच्छा साथियों, अब तो मेरा बोझ संभालो, मैं बाहर सैर करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो भी अपनी जगह से निकला और आसमान में गुम हो गया। वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसे कोई चीज दिखाई ना दी। जैसे ही वो बादशाह के पलंग के पास पहुंचा तो वो चौंक पड़ा, लेकिन अपने मुंह से कुछ ना बोला। तीनों पाइयों से पूछने लगे कि तुमने क्या देखा? वो कहने लगा कि बादशाह की जूती में एक जहरीला सांप बैठा देखा है। अफसोस, जैसे ही बादशाह सोकर सुबह उठेगा तो ये सांप उसे डस लेगा और बादशाह मर जाएगा। दूसरे पायों ने कहा कि तुम चाप देकर वापस क्यों चले आए? उसने कहा कि अगर मैं उसे मारने लग जाता तो बादशाह की आंख खुल जाती और हमारा सारा राज अफशा हो जाता। बादशाह उसकी बात भी खामोशी से सुनता रहा। आखिर में चौथा बोला कि कितनी अजीब बात है, बादशाह जो इस पलंग पर सो रहा है, उसकी इकलौती बेटी जो बचपन में उससे गुम हो गई थी आज भी जिंदा है और उसी बढ़ई की बीवी बनकर जिंदगी गुजार रही है जो हमें बादशाह को फरोख्त करके गया है।
शहजादी आज तक यही जानती है कि वो एक बढ़ई की बेटी है, हालांकि वो बादशाह की बेटी है। तभी सारे पाई कहने लगे, तुमने तो हमें बिल्कुल नई बात बताई है। अगर बादशाह को अपनी बेटी के बारे में मालूम भी हो गया तो वो उसे महल में नहीं लाएगा। सुना है कि उसने किसी बढ़ई से शादी कर ली है, लेकिन उसने जिससे शादी की है वो भी एक शहजादा है और उसका बाप मुल्क पर हुकूमत करता है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। बादशाह उठकर बैठा और उसने सबसे पहले अपने पहरेदार को बुलाकर महल के खजाने के पास भेजा और वहां पर 7 चोर बेहोश पड़े थे। बादशाह को यकीन आ गया कि ये सारी रुदात सच्ची थी। तभी बादशाह ने अपने पहरेदार से कहा कि मेरे दोनों जूतियों को किसी मोटे डंडे से खूब पीटो। और जब उसने ऐसा करने के बाद जूतियों को झाड़ कर देखा तो उसमें से एक मुर्दा सांप निकला। बादशाह को पता चल गया था कि इनकी सारी बातें दुरुस्त हैं। इसके बाद उसने अपनी गुमशुदा शहजादी और सोने के दरख्त वाली बात पर भी उसे अब यकीन हो गया था। उसने फौरन एक सिपाही भेजा और जंगल से बढ़ई, उसकी बेटी और दामाद को महल में बुलवा लिया। जब बढ़ई से पूछा गया कि सच सच बताओ ये किसकी बेटी है, तो वो बताने लगा, ये मुझे जंगल में मिली थी। उस वक्त से मैं इसको बेटी बनाकर इसकी परवरिश करता रहा हूँ और फिर मैंने इस शहजादे से इसकी शादी कर दी है जो बढ़ई बना हुआ है। बादशाह और मलका अपनी गुमशुदा बेटी को पाकर बहुत खुश थे। जब शहजादे ने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया तो शहजादी, मलका और बादशाह सभी खुश हुए। मलका ने बेटी और दामाद की आमद में एक शानदार सा जश्न मनाने का ऐलान किया। फिर बादशाह बोला कि मलका अभी कुछ दिन ठहर जाओ, हमें एक और मुहिम सर करके आनी है। इतना कहकर बादशाह अपने घोड़े पर बैठा और जंगल की तरफ चला गया। वो घोड़े पर सवार आगे जा रहा था, उसके पीछे एक बड़ा लश्कर जा रहा था। जंगल के वस्त में पहुंचकर बादशाह ने अपने सारे सिपाहियों से कहा कि काट डालो इस सोने के दरख्त को। बादशाह का इतना कहना था कि सिपाहियों ने कुल्हाड़ियां चलानी शुरू कर दी। दरख्त के अंदर से एक जोरदार आवाज आई कि खबरदार, जो किसी ने दरख्त को हाथ भी लगाने की कोशिश की। सारे सिपाही डरकर पीछे हट गए, लेकिन बादशाह ने घोड़े पर बैठे बैठे तलवार निकालकर कहा कि उखाड़ लो जड़ से इस दरख्त को। मैं देखता हूं कि देव कितना ताकतवर है। अगर ये बाहर निकला तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। सिपाहियों ने बादशाह का हुक्म पाकर फिर दरख्त को उखाड़ना शुरू कर दिया। इतने में वो देव चीखता हुआ बाहर निकला और एक तरफ को भागकर जाने लगा। बादशाह उसके ताकुब में गया। देव भागता हुआ काफी दूर एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। बादशाह घोड़े पर बैठा वहां पर पहुंच गया। देव ने बादशाह को दबोचा और उस बड़े से दरख्त के तले में बंद कर दिया। उसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और अपने आप को बादशाह के भेस में बदलकर दरख्त पर सवार होकर सिपाहियों के पास आ गया। सिपाहियों ने उसको अपना बादशाह ही समझा और उसका हुक्म मानकर दरख्त को जड़ से उखाड़ लिया। सोने का दरख्त लेकर सिपाही जब महल में वापस आए तो वो देव भी उनके पीछे पीछे भेस बदलकर महल में पहुंच गया। सोने का दरख्त महल के शाही बाग में लगा दिया गया। बादशाह के सारे नौकर समझते थे कि बादशाह ने देव को मार दिया है, लेकिन देव ने बादशाह का रूप धारा हुआ था। किसी को भी इस वाक़ये का इल्म नहीं था, सिर्फ बादशाह का घोड़ा जानता था। मलका का उसूल था कि जब वो सब सो जाते तो रात को एक थाली में घास ले जाकर घोड़े को अपने हाथों से खिलाती थी। इस रात भी जब वो घोड़े के पास गई तो घोड़े के आंसू बह रहे थे। जब उसने घोड़े से वजह पूछी तो उसने बताया कि जो बादशाह तुम्हें नजर आ रहा है वो दरअसल बादशाह नहीं बल्कि देव है और बादशाह को उसने उस दरख्त के तने में कैद कर दिया है। तुम जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मलका जल्दी से महल में गई और शहजादे को लेकर घोड़े के पास आई। दोनों घोड़े पर बैठे और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। देव बहुत चालाक था, उसे मलका और शहजादे की रवानगी का पता चल गया था। वो फौरन देव बनकर हवा में उड़ने लगा और घोड़े का ताकुब करने लगा। अचानक मलका ने घोड़े का एक कान दबाया, घोड़े के पर निकल आए और वो आसमान पर उड़ने लगा। देव घोड़े को उड़ते देखकर खुद भी उसके पीछे उड़ने लगा। थोड़ी देर में घोड़ा एक समंदर पर पहुंचा। देव ने हाथ बढ़ाकर घोड़े की दुम पकड़ ली। घोड़े ने मलका से कहा कि मेरी दुम काट दो।
मलका ने शहजादे से कहा। शहजादे ने फौरन ही घोड़े की दुम काट डाली। दुम कटने की देर थी कि देव घोड़े की दुम के साथ ही समंदर में गिरा और डूब कर मर गया। उसके बाद घोड़ा जंगल में गया और शहजादे ने दरख्त को काटकर अपने बादशाह को आजाद किया। बादशाह मलका और शहजादे के साथ महल में आया। सारे मुल्क में बहुत ही जश्न मनाया गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।